कि इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है। अगर तुम गलत भी बोलते हो, तुम्हारा पॉइंट ये होना चाहिए कि सामने वाले तक तुम्हारा इंफॉर्मेशन पहुंचने का जरिया है, वो तुम्हारा एजुकेशन नहीं है। एक्सपेक्ट आई रियली फील दैट इज नॉट फेयर फॉर आस्किंग 17 ईयर और 18 ईयर चाइल्ड और स्टूडेंट कि तुमको आगे अपना 60 इयर्स मतलब टिल यू डाई करना क्या है। क्या तुम जो पढ़ते हो वो और इंडस्ट्री में काम करना इज डिफरेंट थिंग, टू डिफरेंट थिंग्स। एंड जब तुम वहां काम करते हो तुम बहुत सीखते हो। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आपको ईमेल आया, राइट, इतने सारे रिजेक्शन ईमेल आने के बाद कि गूगल हैज एक्सेप्टेड यू एज अ इंटर्न, कैसा लगा? कैन यू डिस्क्राइब द कैंपस ऑफ गूगल जिन्होंने नहीं देखा है? My father was in hospital. I was looking for loans. So learning is that कि problems will go and come. Life is never be a straight line. काबिल बनो, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। 1, 2, 3, 4. Hey guys, welcome to yet another episode of the TIP podcast. And today we have a very special guest. She is the first student on this podcast, and I'm very happy to welcome Shweta Shah on this podcast. Hi, Shweta. Hi, how are you, Abhimanyu? I'm doing good. How are you? I'm fine. Thanks for having me on this channel. Excited about this. I'm really excited to have you as well. So, to tell something about Shweta, she is currently a student at UNC Charlotte. She is in her last semester of masters. Prior to doing masters, she was in India working at Network 18. She worked there as a software development engineer. She worked for a couple of companies. Before that, she was in CDAC, Mumbai. And before that, she was a student at Bachelor's of Engineering in Mumbai University. So this is her journey. She grew up in Thane. Last year, she got, through her hard work, she acquired her internship in Google in the YouTube division, and she worked for the San Francisco office. Is that correct? Yeah, San Bruno. And I just wanted to bring that journey forward so that it can inspire and motivate all of us. And just want to get to know her and understand how she made it to Google. So welcome to the show. Thank you so much. Yeah, it would be great for me to share my journey and इससे किसी को थोड़ा भी help हो जाएगा तो भाई bless, बस और क्या। Absolutely. तो श्वेता के बारे में यार, she is a very lovely personality, cheerful, positive, and she comes from a very humble background from Thane. So even I'm from Thane, so we share the same city. And Shweta, tell me something about growing up in Thane. Growing up in Thane was really special for me. मतलब बचपन से थाने में हूँ। I have a different love for थाने and थाने में बड़ी हुई, वहाँ खेले कूदे, वहाँ पे पढ़ाई की, 10th कंप्लीट किया। इनफैक्ट आई डिड माय 11th 12th फ्रॉम थाने ओनली एंड टिल 12th तो मैं थाने में ही थी, मैं थाने के बाहर गई ही नहीं थी। Nice. तो 12th के बाद इंजीनियरिंग मैंने मुंबई में की, तो थाने वाज रियली गुड प्लेस। मतलब उसके लिए तो अलग ही प्यार है भाई थाने का। Nice. That's really nice. And you also have an elder sister, right? तो आप दोनों एक ही स्कूल में गए थे या अलग-अलग स्कूल में? How was it? हम दोनों एक ही स्कूल में थे। सो शी इज 3 इयर्स एल्डर देन मी। तो हम एक ही स्कूल में थे, साथ में जाते थे, साथ में आते थे, सेम कपड़े पहनते थे बिकॉज बहनें सेम कपड़े पहनते हैं। सो Nice. दैट वाज डिफरेंट। वो एक अलग मजे थे बहन के साथ, फैमिली के साथ। That's nice. So, tell me, who was more studious, like among the two sisters that you had? Like, were you more notorious? Was she more notorious? How was it? So I was the most notorious, I can say that. Mm-hmm. बट सेकेंड थिंग, उसको कभी मम्मी बैठ के पढ़ाती नहीं थी। दीदी Okay. को कभी मम्मी ने ऐसा बैठ के पढ़ा नहीं। मम्मी मुझे 7th स्टैंडर्ड तक बैठ के पढ़ाती थी और जम के मारती थी। मैंने बहुत मार खाया है मम्मी का। तो अभी शी वॉज स्टूडियस दैट टाइम एंड क्योंकि उसको मम्मी को कभी पढ़ाना नहीं पड़ा, मुझे तो बहुत पढ़ाना पड़ता था। सुबह शाम बैठ के पढ़ाओ, मारती थी मुझे। सोचो मैं पढ़ती नहीं थी तो आई वाज स्लो एज टर्टल। तो इसलिए
So I think she was studious. नाइस, बट Then टर्टल विंस द रेस राइट एट द एंड। तो मुझे लगता है कि आपने भी बहुत आपकी जर्नी स्टेडी रख के आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो जब आप कॉलेज में थे, लाइक आई थिंक यू मस्ट हैव पिक्ड साइंस लाइक मोस्ट ऑफ अस। कैसा था कॉलेज का एनवायरनमेंट कमिंग आउट ऑफ स्कूल एंड देन इनटू इंजीनियरिंग? कैसे आपने डिसीजन लिया उस? एक तो अभी मैं बताऊं, मैंने 10th पास की तो आई वाज अराउंड 16 years old and I didn't knew what to do. So जब सब लोग साइंस कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, 2 साल खुद को दे देते हैं। साइंस लूंगी तो काफी चीजें ओपन हो जाती है आगे जाके चूज करने के लिए। सो लेट्स गो फॉर साइंस। तो मैंने दैट वाज द रीजन आई टुक साइंस एंड व्हेन दैट द टाइम केम कि भाई अब मुझे डिसीजन लेना है, अब क्या करना है। 12th इज हियर, नाउ हैव टू टेक डिसीजन कि अब इंजीनियरिंग करनी है या क्या करना है। तो मेरी सिस्टर इंजीनियर थी, इंजीनियरिंग में थी, वो डिप्लोमा में थी, तो वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थी। तो उसका बहुत इम्पैक्ट था कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है और मैं बहुत ज्यादा कॉपी करती थी दीदी को। जो सब छोटे भाई बहन करते ही है अपने बड़े भाई बहन को कॉपी, तो लाइक दीदी कर रही इंजीनियरिंग तो मैं भी कर लेती हूँ एंड सब कर रहे तो मैं भी कर लेती हूँ। ओके। मतलब मैं ये बता पाऊंगी कि मैं आई वॉज 17 जब भी मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे मेरे नेक्स्ट 60 इयर्स करना क्या है। एंड आई थिंक आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं डिसीजन ले पाऊँ, तो ले लिया इंजीनियरिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग कोई प्लान नहीं था मेरे दिमाग में कि भाई मुझे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सो एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आई रियली फील दैट इज नॉट फेयर फॉर आस्किंग 17 year और 18 year चाइल्ड और स्टूडेंट कि तुमको आगे अपना 60 years मतलब टिल यू डाई करना क्या है, क्या तुम डॉक्टरी करना चाहते हो। होते हैं वैसे बच्चे की बचपन से सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, मुझे नहीं था कुछ ऐसे एम्बिशियस, आ ही नहीं रहा था, कहाँ से लाऊं मैं। दिस वॉज माई जर्नी टिल इंजीनियरिंग। तो मैं ऐसे पहुंच गई इंजीनियरिंग जिसमें मैंने थोड़ा हट के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिया बट मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। इसके पीछे भी एक छोटा चीज था विच इज फनी। माय पेरेंट्स वर लाइक दोनों बहनें सेम फील्ड में नहीं रहनी चाहिए। तो आई वाज लाइक व्हाई, आगे जाके घर में ही कंपटीशन होगा। ओह गॉड, दिस वाज देयर लॉजिक एंड दैट्स द रीजन आई ended up in information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। आपने जो पॉइंट बोला कि उस एज में जितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन या एक्सपोजर होता है उसमें आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। और ऐसा भी है कि वंस यू गेट इनटू वन फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है कि इफ यू ट्राई टू स्विच तो आपको थोड़ा सोसाइटल प्रेशर भी रहता है कि यार आपने तो इंजीनियरिंग ली थी, फिर अभी क्यों आप कुछ और करना चाहते हो या जो भी है। तो एट दैट अर्ली एज जो आप डिसीजन लेते हो, आई थिंक it has to be followed through your life, which I don't think is right? आपको क्या लगता है इस बारे में? Yes, I think that is unfair. I always think about this कि मैंने तो ले लिया एंड चलो भगवान की कृपा से मेरे लिए वो लाइन थी जो आगे जाके पता चली मुझे आफ्टर 5 years पता चली कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बट तब तो नहीं था। बट अभी समझो कोई कोई रहता है जो अभी 1 साल इंजीनियरिंग कर ली और फिर सोचता है यार नहीं करना है। पहली चीज घर पे बताओ, दूसरी चीज घर वाले अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, फिर वो सोशल प्रेशर में घर वाले बोलेंगे नहीं भाई तुमको तो इंजीनियर ही बनना है। तो वो एक प्रेशर रहता है बच्चों पे एंड आई थिंक दैट इज अनफेयर एंड ये थोड़ा कॉमन कर नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि अगर किसी को किसमें इंटरेस्ट नहीं है इट्स ओके टू चेंज। क्योंकि मेरे को लगता है 30 years तक हमारा वो गोल्डन पीरियड रहता है जिसमें तुम काफी चीजें ट्राई कर। आई तो थिंक देयर इज नो एज ओनली टू लर्न एनीथिंग। बट चलो सोसाइटी के हिसाब से 30 साल तक तो तुम कितना कुछ ट्राई कर सकते हो। जो करना चाहिए, जो चाहिए वो ट्राई करो। यू नेवर नो, यू विल एंड अप विद समथिंग यू लव अ लॉट एंड यू विल जस्ट सक्सेस अ लॉट इन दैट। दैट्स सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपने जो बोला वो सच में बहुत ही टू द पॉइंट है कि आपको नहीं पता कि आपको कौन से एज में वो क्लिक हो, वो चीज जो आपको चाहिए वो सच में चाहिए। कभी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन कम ज्यादा होता है तो मे बी यू चूज अ पर्टिकुलर करियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा बहुत सही हो जाए तो आप, आई थिंक जो आपने बोला कि ट्राई करते रहो और कभी कुछ जो क्लिक हो जाए दैट इज द करियर दैट यू शुड चूज, तो आप खुश भी रहोगे, राइट?
right now when you Yes. currently as a software engineer, आपको कैसा लगता है, like when you work completely like on a good day, आपका आपका मोरल कैसा रहता है? How do you feel after a good productive day? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोडक्टिव डे रहता है ना, उस हम्म दिन रात को अच्छे से खाना खा के सोने में जो मजा है, वो मतलब बहुत सैटिस्फाइड रहता है। बट जिस दिन बहुत कम काम होता है या फिर आप नहीं काम करते हो, तो वो काफी ऐसे लगता है भाई यार आज कुछ किया ही नहीं है, कुछ करना तो चाहिए था ना, एक दिन वेस्ट कर दिया। तो मोरल बहुत ज़्यादा अप रहता है जब बहुत काम करते हैं। एंड आई लव माय जॉब, आई लव डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई लव टू लर्न थिंग्स, आई हैव लर्नड दिस लेटली, बट दैट इज ओके। इतना भी लेट नहीं थी मैं, Correct. मैं मेरे टाइम पे थी कि पता चल गया कि भाई करना क्या है तो ठीक है। बट हाँ, आई लव माय जॉब। तो जो भी मैं करती हूँ, एकदम दिल से, अगर दिल से करती हूँ ना तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो वो लेट सीखा बट सीख लिया। That's really nice. तो आपने like you guys are watching, right? देखा आपने कितना पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है श्वेता के अराउंड. सो that's really inspiring from her. So श्वेता, when how did you decide कि आपको कैसे समझा कि through your engineering आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखे होंगे इंजीनियरिंग के, एंड एट सम पॉइंट आपको लगा होगा कि नहीं यार अभी तो सॉफ्टवेयर में ही करना है करियर. तो what made you decide software as a career? स्टार्टिंग जब इंजीनियरिंग चालू हुई तो फर्स्ट सेमेस्टर आता है एंड वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकेंड फर्स्ट ईयर में सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, सबके होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 4 केटी लग गई आउट ऑफ 6 हम्म फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड उस टाइम पे मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ ही थे, मेरे साथ खेलते कूदते थे, वो तो ऑल क्लियर हो गए। तो थ्री इडियट्स का वो डायलॉग तो सभी को याद होगा कि Yes. भाई तुम्हारे फ्रेंड्स फेल होते तो बुरा तो लगता है, बट जब वो पास हो जाते हैं और वो रैंक करते हैं क्लास में तो उससे भी ज्यादा बुरा लगता है तुमको। एंड दैट हिट मी एट दैट मोमेंट। उसके बाद मुझे कभी केटी नहीं लगा पूरे इंजीनियरिंग में। दैट वाज द लास्ट टाइम मेरे को केटी लगा था। बट मुंबई यूनिवर्सिटी का जो भी टारगेट रहता है, मतलब उनका जो सिलेबस है वो काफी थ्योरेटिकल बेस्ड सिलेबस है। तो उस टाइम पे भी आई वाज नॉट हैविंग एक्सपोजर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उनका काफी थ्योरेटिकल बेस्ड सिलेबस है। तो उसकी वजह से फिर भी मुझे वो प्यार, वो बोलते हैं ना कि करना है, मुझे ये करना है, वो नहीं आ रहा था। बट इंजीनियरिंग हो गई। इनफैक्ट बहुत अच्छे है, आई वाज लाइक रियली गुड, मेरा एग्रीगेट मार्क्स वगैरह बहुत अच्छा था। बट फिर भी मुझे नहीं आ रहा था कि भाई मुझे करना क्या है, यही करना है, क्या करूं मैं अभी, मतलब सो कंफ्यूज्ड। एंड आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेरे जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेरे आस-पास, या फिर मैं अभी भी लोगों को देखती हूँ कि कर लिया अब क्या? तो तब तक मुझे नहीं समझ रहा था। एंड नाउ आई डोंट फील अशेम ऑफ शेयरिंग दिस, बट पहले जब नहीं समझ रहा था तो मैं बहुत ऐसे क्या कर रही हूँ, सब लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर मेरी बहन आई कि तू सिडैक कर। मैं बोली मैं नहीं कर रही सिडैक। माय फर्स्ट रिएक्शन वाज दिस, कौन वापस पढ़ाई करेगा, अब तो इंजीनियरिंग छोड़ी है मैंने। एंड शी फोर्स्ड मी कि मेरे फ्रेंड्स ने किया है, उनको डिसेंट जॉब मिल गया, तू भी कर ले। तो मैं चलो ठीक है सिडैक करती हूँ। एंड व्हेन I started preparing for SIDAC entrance exam, I'll tell you, that was the moment really started liking, little I started liking programming. And then my journey started. The whole SIDAC, the entrance exam, and my new job journey started. It's been 5-6 years now. क्या बात है, क्या बात है! मतलब इट टूक सम टाइम, इट टूक आफ्टर इंजीनियरिंग भी आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ा, एंड आपको जब क्लिक हुआ, तब आपको लगा कि यार ये करियर बना सकते हैं, राइट? और उसके बाद Yes, आपने yes. पीछे मुड़ के नहीं देखा. हाउ वर योर डेज इन सीडैक? आपने मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग लाइक लर्निंग देयर आफ्टर ग्रेजुएशन, और उसका आपको इंजीनियरिंग के बाद जब आप इंडस्ट्री में गए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? जैसे कहा मुंबई यूनिवर्सिटी काफी थ्योरेटिकल बेस्ड सिलेबस रहता है, बट सीडैक में उल्टा रहता है, फुल प्रैक्टिकल रहता है, फुल प्रैक्टिकल। एंड आई वाज देयर इन कॉलेज। सब हम लोग 12-12 घंटे, 13-13 कॉलेज में रहते थे।
सुबह सिखाते थे, शाम को 6 घंटा प्रैक्टिकल होता था। तो जो सीखते थे वो प्रोग्रामेटिकली हम करके देखते थे। हमने इनफैक्ट सब कुछ टच किया था उसमें, ऐसा नहीं कि जावा तो जावा सीखा। एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड नहीं था वो। वो सबको ऐसे टच करके उन्होंने हमको सबका एक आइडिया दिया था उसमें। 6 मंथ्स का कोर्स था वो। तो उसमें इतना आइडिया आया था कि मुझे अभी किसमें काम करना है, क्योंकि बहुत सारे फेजेस रहते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। डेटाबेस रहता है, फ्रंट एंड रहता है, बैक एंड रहता है। तो उसमें इतना एक्सपोजर मिला कि भाई किसमें जाना है तुझे। बहुत सही था वो मेरे लिए। दैट वाज़ द पॉइंट, बोल सकती हूँ, मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे तब मुझे फ़ील हुआ कि अच्छा ऐसा फ़ील होता है जब तुम्हारे मन में कुछ आ जाता है कि अब क्या करना है तुम्हें। क्योंकि नाइस। तब तक तो मैं पॉइंटलेस घूम रही थी इधर-उधर, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो दैट वाज़ द डे। क्या बात है! तो आपको जितना मीनिंगफुल लगना चालू हो जाता है, लाइक आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे बचपन में कोई टॉय अच्छा लगता है या फिर कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, उसमें जो मज़ा आता है, वो मज़ा करियर में मिलना चालू होने के बाद, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस लाइक वर्किंग इन द इंडस्ट्री? जब आपने फर्स्ट जॉब किया, हाउ वाज़ इट फॉर यू? तो सीडैक का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इतना टाइम हम बैठते थे जब भी कॉलेज में, तो हमारा उधर पेशेंस लेवल बढ़ रहा था। सीखने का वो लर्निंग पावर रहता है, क्योंकि जब हम बहुत टाइम से ज़्यादा पढ़ते नहीं तो हमारा वो पावर भी कम हो जाता है, हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। तो वो बढ़ चुका था, वो एकदम हाई था। और जब मैंने काम चालू किया तो लर्निंग वाज़ लाइक कि अब भी सीख लेंगे भाई, बताओ क्या सीखना है? अभी हम तो 6 महीने में इतना कुछ सीख के आ गए, अब तुम क्या नया बता दोगे? वो भी सीख लेंगे हम। तो हुँ, वो एक इन्फ्लुएंस था कि लर्निंग, मेरी एबिलिटी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, अडैप्टिंग न्यू थिंग्स, वो बहुत बढ़ गई आफ्टर सीडैक। एंड इंडस्ट्री में काम करना वाज़ अलग, जो इंजीनियरिंग में होता है या फिर तुम जो पढ़ते हो वो, और इंडस्ट्री में काम करना इज़ डिफरेंट थिंग, 2 डिफरेंट थिंग्स। एंड जब तुम वहाँ काम करते हो, तुम बहुत सीखते हो। तुम्हें और समझता है कि चल क्या रहा है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाई इट इज़ देयर, हुँ, व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग। तो वो सब हमें तब समझ में आता है, जो तब तक मुझे नहीं समझा था। हाँ। मेरे मुझे नहीं समझा था। यप, यप। तो आप जब इंडस्ट्री में काम कर रहे थे इंडिया में और आप मतलब अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर स्किल्स जो आपने सीडैक में सीखी, व्हाट वर अदर स्किल्स दैट यू हैड टू लर्न? और आपके जो मतलब हर एक का पर्सनैलिटी टाइप रहता है, राइट? वो पर्सनैलिटी हुँ, टाइप कभी-कभी वो जॉब के लिए मतलब सूटेबल रहता है, कभी-कभी नहीं रहता है, तो कुछ चीज़ें हमको सीखनी पड़ती है। हुँ। व्हाट वाज़ सम ऑफ द स्किल्स दैट यू हैड टू लर्न और पुश योरसेल्फ टू एक्वायर? हाँ, मतलब फर्स्ट मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। जितना अब भी कॉन्फिडेंस थोड़ा जो दिख रहा है, उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं छुट्टी माँगने को भी डरती थी। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं बहुत डरती थी, कॉन्फिडेंस बहुत लो था। बट वो काम करते-करते उसको मैंने, मतलब वो ग्रो होता गया। क्योंकि जब तुम काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लोग कॉन्फिडेंट देखते हो आस-पास, तो वो मैंने सीखा कॉन्फिडेंट होना। प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बात करते हैं, वो सीखा। तो ये सब नहीं होता, नॉर्मली फ्रेंड से हम कैसे भी बात कर लेते हैं। बट एक अलग चीज़ होती है कि फॉर्मली लोगों से जिनको तुम नहीं जानते, उनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सब स्किल्स मैंने एक्वायर करी। दैट्स रियली नाइस क्योंकि आपने जो बोला ना कम्युनिकेशन स्किल्स या नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर ओन प्लेस। तो वो कोई सिखाता नहीं है, राइट? और आपको ऑन द फ्लाई जॉब पे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है जिससे आपका फ़ायदा होता है इन हुँ, टर्म्स ऑफ करियर। तो येस। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू टच्ड ऑन। और फिर आपने जब इंडिया में इतना काम करने के बाद आपने मास्टर्स करना क्यों सोचा? मतलब यू वर ऑलरेडी अर्निंग राइट? आपका लाइफ सॉर्टेड था। तो आपने वो डिसीजन आई वुड से रिस्क है, राइट? आपने लोन लिया होगा टू कम फॉर मास्टर्स। व्हाट वाज़ द आइडिया बिहाइंड दैट? So there are 2 to 3 ideas. हुँ, हुँ। So I'll go स्टेप बाय स्टेप नहीं, पॉइंट वाइज़ पॉइंट। या। तो फर्स्ट था कि मुझे मास्टर्स करना था। हुँ, 2 मैंने जब आई उसके 2 साल पहले से ही मुझे करना था। बिफोर कोरोना ओनली आई वाज़ ट्राइंग। बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, प्लस और भी काफ़ी चीज़ें थी। कुछ चीज़
होने के लिए सब चीज एक जगह पे आनी, दे हैव टू फॉल इन प्लेस, तब वो चीज होती है। बट वो नहीं हो रहा था, कुछ भी ये नहीं हो रहा था, कभी उसका वो नहीं हो रहा था, ये नहीं। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है मास्टर। तो वो एक पॉइंट आया जब भी सब ठीक हो गया, मेरे पेरेंट्स खुद ब खुद आए कि श्वेता तू मास्टर्स क्यों नहीं करती, कर ले मास्टर्स अभी। एंड आई स्टार्टेड कि भाई कल से पढ़ना चालू कर रही हूँ मैं। जीआरई का प्रिपरेशन मैंने 3 महीने में किया, बिकॉज वो आए थे मुझे 15 अगस्त 2020 को बोलने की श्वेता मास्टर्स क्यों नहीं कर लेती, कर ले अभी मास्टर्स। मैंने 16 अगस्त से पढ़ना चालू कर दिया कि भाई चलो अब सॉर्टेड है तो चलो अब पढ़ सकते हैं। और फैमिली सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो नहीं रहता है तो हम इतने स्ट्रांग नहीं होते। एंड देन कोई भी वॉर जीतने को नहीं होता, मतलब फॉर मी इट इज वेरी इम्पॉसिबल। एंड द सेकेंड थिंग वाज माय फियांसे वाज इन यूएस। तो देखो लोग तो बोल ही रहे थे कि भाई तू मास्टर्स क्यों कर रही है, वैसे भी तू तो जाने ही वाली है शादी करके यूएस। तो मुझे बोला था बट मुझे वहां जाके घर पे नहीं बैठना। आई एम नॉट सेइंग कि घर पे बैठना गलत है, दैट इज योर चॉइस। बट फॉर मी आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं घर पे रहूं सिर्फ और कुछ ना करूं, बिकॉज अभी तो मैंने सपने चालू किए थे देखने इंजीनियरिंग के 2 साल बाद। एंड नाउ आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ कि अभी तू मत कुछ कर। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो कुछ वैसे भी मास्टर्स करना था तो करूंगी, तो और भी सब मतलब देखा सब, मैं यहाँ आऊंगी मतलब जतिन है यहाँ पे, मेरे को घर पे भी नहीं बैठना, मेरे को मास्टर्स करना भी था बहुत टाइम से। तो एवरीथिंग फॉल इन प्लेस और मैंने मास्टर्स का डिसीजन कर लिया। क्योंकि जो मैं काम कर रही थी मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और एक्सप्लोजर चाहिए, मुझे और डीप नॉलेज चाहिए, जो मैं कब से ढूंढ रही थी कि अब मुझे इसमें प्यार आया है, मुझे और डीप जाके पढ़ना है। एंड जो मास्टर्स से मुझे लगता है कि 2 साल का तुम्हें खुद पे जो फोकस करने का टाइम मिलता है, जो ये एज में नहीं मिल पाएगा, जॉब एंड ऑल अदर थिंग्स नहीं मिलता। तो मास्टर्स से फुल फोकस, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, सब पे फोकस होता है 2 साल। सो दैट वाज द रीजन आई चोज मास्टर्स। क्या बात है, क्या बात है। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट राइट, आपने जो रीजंस बताया उसमें किसी फैमिली पे प्रेशर नहीं था। नाउ दिस वाज अ चॉइस यू मेड एज कंपेयर्ड टू अर्लियर वेयर यू डिडंट नो थिंग्स। आपने अभी नाउ यू हैड स्पेंड टाइम अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, एंड नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, उसमें यू वांटेड टू इन्वेस्ट मोर टाइम एंड एफर्ट टू गेट देयर। और आई थिंक मैंने सुना है कि ऐसे कुछ मतलब if there are couples, one of the partner goes into a easier university to just get the degree for the sake of it, right? आपने वो भी नहीं चूज किया, आपने you tried to go into a difficult university जिसमें आपको भी it might be challenging for you as well to get into masters. So how was it after working for industry to get into again academics, right? Masters का जर्नी आपका कैसा था? मस्त, मतलब मुझे कोई रिग्रेट्स ही नहीं है कि मैंने ये डिसीजन लिया। हाँ, बट स्टार्टिंग में आई तो अचानक सब बदल जाता है। इंडिया में थी, हम हिंदी, मराठी, गुजराती, आई एम गुजराती, तो गुजराती में बात करते थे। पहली चीज मुझे बहुत इफेक्ट की कि यहाँ पे बहुत इंग्लिश बोली जा रही थी एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू इट। दो आई एम फ्रॉम इंग्लिश स्कूल, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, फिर भी कहाँ ना कहाँ मैं कतराती हूँ इंग्लिश बोल, पहले बहुत ज्यादा कतराती थी इंग्लिश बोलने से। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इंडिया में जब मैं थी कि इंग्लिश ही है सब कुछ, तुम्हें अगर इंग्लिश नहीं आता यू आर अनएजुकेटेड, ऐसा मुझे लगता था। बिकॉज शायद वैसा प्रेशर था मेरे आसपास कि हम जब कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, चलो इज का ऑफ कर दिया, ऑफ का ऑन कर दिया, बट वो गलती सुधारने वाले 5 लोग खड़े हो जाते थे। तो फिर मुझे लगता था जाओ नहीं बोलना मुझे, जाओ बोलना ही नहीं है मुझे, अब तुम 5 लोग उठ के मुझे मेरी गलती एकदम अलग वे से बता रहे हो, देयर आर वेज टू पॉइंट आउट फॉल्ट्स। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ था, ओके नहीं बोलना मुझे, नहीं मैं तो हिंदी में बात करूंगी, दैट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। तो पर यहाँ पे आई तो एक मुझे ऐसे था कि मेरे को तो डर लग रहा है भाई ये लोग से बात करने से, यहाँ के लोगों से बात करने से, विच इज आई थिंक नॉर्मल। जो नए आते हैं
तो मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। देन आई स्टार्टेड आस्किंग एवरीवन, इवन आई स्टार्ट आस्क्ड यू कि भाई ऐसा होता है क्या? Yep. तो ऐसे था कि नहीं चलो नॉर्मल है भाई, सबके साथ होता है तो ठीक है। तो वो एक वो एक था कि वो एक फर्स्ट हर्डल था मेरे लिए। तो वो किया क्लियर, फिर भी वो क्लियर आगे जाके जब मैं बाहर जाके काम की और बात की, तो मुझे सच में ये एक मैसेज सब तक पहुंचाना है कि इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है। अगर तुम गलत भी बोलते हो, तुम्हारा पॉइंट ये होना चाहिए कि सामने वाले तक तुम्हारा इंफॉर्मेशन पहुंचने का जरिया है Correct. वो तुम्हारा एजुकेशन नहीं है। प्लीज ये दिमाग से निकालो कि इंग्लिश ही है सब कुछ। नो, इट्स गुड टू नो अ न्यू लैंग्वेज, बट जरूरी नहीं है तुम सब सही। मैं तो हिंदी भी सही नहीं बोलती, मैं तो मराठी भी सही नहीं बोलती, मैं गुजराती भी सही नहीं बोलती रहूंगी शायद, बट इट्स ओके ना, सामने वाला समझ रहा है, बस खत्म। तो ये एक मुझे सच में सबको बोलना है, दिस इज मेरे मन की बात। करेक्ट करेक्ट नो आई थिंक आपने जो पॉइंट बोला ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट कम हियर हैव दैट इंग्लिश ही बोलना है एंड it is understandable because the common language here in US is English. True. इट्स इंग्लिश। But at the same time, people here acknowledge that your first language was not English. It was, it could be anything. It could be Chinese, it could be Spanish, it could be Hindi, right? They acknowledge, उनको मालूम है ये चीज कि आपका नेटिव लैंग्वेज वो नहीं है, इंग्लिश नहीं है। तो फिर भी तो आप टूटा फूटा भी अगर इंग्लिश बोलते हो तो दे गेट द पॉइंट, दे आर मोर देन विलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड दे आर मोर देन विलिंग टू कोऑपरेट विथ यू with that language. So if you are someone new who is just arrived in US and you are hesitant to speak English, feel free to speak English. कुछ नहीं होता. The worst thing that can happen is आपको 2 sentences और लगेंगे to explain your point. But you once you get a hang of it, you will be able to get across that fear and आपका communication skill over a period of time improve होगा. Yes, I agree with you a lot. So moving on from the communication aspect of it, how was it for you जब internships ढूंढ रहे थे, right? आप you already had your fiance, but at the same time आपका journey आपका खुद का है, right? You still have to apply, you still have to find your uh, apply online, go through career fair, stuff like that. How was your journey? So when in my first semester I started applying a lot of companies, मतलब मैंने कम से कम 450 कंपनीज क्रॉस किए रहेंगे, मैंने अप्लाई करना छोड़ा नहीं था। आई यूज्ड टू अप्लाई एवरी डे। With that, I used to do lead codes. Like I used to work on my data structures. I used to work जो मुझे कभी इंडिया में टाइम नहीं मिल रहा था काम के चक्कर में कि मैं डीप घुस के डेटा स्ट्रक्चर पढूं, डेटाबेस सिस्टम्स पढूं, या फिर लीड कोड्स मतलब लॉजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करना, वो नहीं हो रहा था। जो मैं यहाँ पे फोकस में आई क्यों थी, वही तो करने आई थी। तो फोकस्ड मैंने एक दिन मिस किए बिना 9 महीने लीड कोड किया है, मैंने एक दिन मिस नहीं किया है। एंड दैट वाज, बट इसमें ना मैं अभी ये बोलूंगी कि इंटरव्यूज बहुत आते थे, उसमें रिजेक्ट्स भी बहुत आते थे। स्टार्टिंग में रोती थी, बाद में आदत हो गई थी मुझे कि चलो कर दो रिजेक्ट, बट हर इंटरव्यू में सीखना एक अलग अलग था। मतलब रिजेक्ट में भी सीखने का कुछ अलग सीखने मिलता था कि भाई ये नहीं, तुझ में ये कम है, ये इस पे फोकस कर। तो फेलियर से सीखने से मुझे लगता है इंटू 2 तुम आगे चले जाते हो। मतलब ऐसे धीरे नहीं, एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगते हो। काफ़ी फेलियर्स के बाद मतलब मुझे मिलते गए ऑफर्स, एंड आई हैड 5 ऑफर्स एट क्या द बात? एंड। आई वाज़ लाइक कि भाई चाहिए मतलब। तो ये मेरा पॉइंट था कि फेलियर हुआ, इट्स ओके। उसमें क्या सीखना है सीखो, और नेक्स्ट टाइम डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स एंड व्हिच विल हेल्प यू, और तुम बहुत फास्ट ग्रो करोगे इससे। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। आपने जो बोला ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजेक्ट्स भी आएंगे, आपका ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम में आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, बट आपको जैसे इम्प्रूव करते करते आप वहां तक पहुंच जाओगे, आपके आंसर्स रिफाइन होते जाएंगे एंड योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो ग्रो विद द मोर इंटरव्यूज दैट यू गिव। और आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोली जो है 9 महीने विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे आपने लीड कोड किया, जो कि बहुत हाँ। डिफिकल्ट है। आई मीन it's not easy to have consistent effort for such a long time. How was that for you? आपने लीड कोड करना चालू किया, स्टार्टिंग में कैसा था?
उसके बाद डिड इट गेट इजियर? हाउ वाज इट फॉर यू? सो स्टार्टिंग में कोई भी चीज काफी डिफिकल्ट होती है। कोई भी चीज तुम पकड़ लो, बट तुमको उसको छोड़ना नहीं है। तुमको पकड़ के रखना है। वो समझो एक ऐसा डंडा है, तुम पकड़ के रुको। कुछ भी बारिश आए, कुछ भी आए, हिलना नहीं उधर से। एक पॉइंट के बाद आदत हो जाती है। तो वो लीड कोड भी ऐसे कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझता, ये क्या कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं सूझ रहा कुछ भी। बट दैट्स ओके, गो फॉर द सोल्यूशन, लर्न कैसा सोल्यूशन है। वंस यू गेट दैट, ओके, डू इट बाय योरसेल्फ। समझ के करो, सिर्फ करने के लिए मत करो। कोई नहीं देख रहा तुमको, तुम कितने लीड कोड कर रहे हो। वो पीरियड ऑफ टाइम में समझ जाता है। तो समझ समझ के करो। 1 या 2 महीना मैक्स, तीसरे महीने में तुम कॉन्फिडेंट हो ही जाओगे। एंड मेरे को लगता है कि कुछ भी पाना है तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी चीज के लिए, मतलब हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, कंसिस्टेंसी इज द की। यू कैन, कुछ नहीं, लक में भी नहीं रहा ना, मेहनत कर लो तुम, शायद आ जाए। यू क्या नेवर बात नो। क्या बात है! मतलब इट्स इंस्पायरिंग फॉर मी एज़ वेल, लाइक ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली आपने। और ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, मतलब हथौड़ी मारते रहो, राइट? या हाँ, दीवार पे सर मारते रहो, कभी ना कभी कोई तो दरवाज़ा खुल ही जाएगा। खुल। इट्स हाँ, सच अ यस। पॉजिटिव माइंडसेट टू हैव। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आपको ईमेल आया, राइट? इतने सारे रिजेक्शन ईमेल आने के बाद कि गूगल हैज़ एक्सेप्टेड यू एज़ अ इंटर्न, कैसा लगा? इट वाज ग्रेट फीलिंग। तो बिफोर गूगल आई हैड 3 ऑफर्स। हुँ, तो जब फर्स्ट वाला आया ना, जब हुँ, फर्स्ट में इंडिया में थी, घर पे थी, और तभी मुझे इंटर्नशिप का ऑफर आया था। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी कि बस हो गया। इसलिए तो पढ़ रही थी मैं इतना दिन से। एंड इट वाज चाटम फाइनेंस था कंपनी, वो भी काफी अच्छा था। एंड आई वाज सो हैप्पी, बस अभी खत्म। अब क्या चाहिए, मेरे को इंटर्नशिप मिल गया है करके। तो उसके बाद मुझे आते गए लास्ट में मेरे को गूगल का आया। क्या बात है! और जब मुझे गूगल का आया, मैं बहुत रोई थी। मैं बहुत, मतलब मैं बोली ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फैंग में जाऊँगी। एंड आई स्वेयर मैंने मैंने मेरे एम्बिशन में भी नहीं रखा था कि फिलहाल ये 1 साल में मैंने टारगेट भी नहीं करा था फैंग। मैंने सोचा अभी सीख लेते हैं, फिर अप्लाई कर लेंगे सीखने के बाद। अभी तो नहीं करना है करके, इट्स ओके। बट जब वो आया, आई वाज़ वेरी हैप्पी। आई वाज़ लाइक ये मेरे साथ हो रहा है। ये मेरे साथ हो रहा है। बट आई वुड रियली वांट टू से दैट कि मेरे मेहनत में मेरा मेहनत तो था ही। बट कभी-कभी मैं भी इंसान हूँ ना, मैं भी भटक जाती थी कि यार मेहनत थोड़ा आज के दिन नहीं करना। तो मुझे जतिन बिठा के, व्हाई नॉट, बैठो, पढ़ो, हुँ। पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सोने मिल रहा तुमको आज। मैं 2-2 बजे तक बैठी रहती थी। बट हाँ, कभी-कभी बिकॉज़ मूड ऐसे ऑफ हो जाता है, आज नहीं करना, बट नहीं, उस टाइम पे ही उसका रोल ये था कि बिठा के पढ़ो, पढ़ो, हुँ, पढ़ो। हुँ। तो लाइक टू गिव हिम क्रेडिट फॉर व्हाट ही हैज़ डन। तो और एक बात बोलनी थी हाँ, कि वो वापस थ्री इडियट्स का ही डायलॉग है कि हुँ, तुम काबिल बनो, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। एंड मैं थोड़ी बहुत फ़िल्मी हूँ ही, बट ये सारी चीज़ें सब सामने होती है ना, तो आई रियली थिंक ये तो सब सच है कि तुम काबिल बनो। तो मैंने मेहनत की और अपने आप वो आया। तो दैट इज़ अपने व्हाट आप आई तो वांट नहीं टू आया, शेयर आप अपने आप तो नहीं आया, आपकी मेहनत ने उसको खींच के आपके पास लाया। एंड जैसे आपने बोला ना कि ये फ़िल्मों में होता है, सो द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ आल्सो दिस। हम किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुला रहे, हम कॉमन लोगों को जिन्होंने ये सारी जर्नीज़ की है, जिनसे नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल बच्चे रिलेट कर पाएँ, जिन्होंने ये हुँ, अपने आजू-बाजू वाले नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के कुछ आउटस्टैंडिंग किया है, उनको ही ला रहे हैं। हुँ, द रीज़न हाँ, बिहाइंड दिस इज़ दैट कि आप जो मैजिक मूवीज़ में देखते हो, वो रियल लाइफ़ में भी हो सकता है, थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू perseverance, and through all these good हुँ। qualities that are followed by such people, and they reach really beautiful heights. So how was your experience at Google? जब आप शार्लेट में थी, you went to San Bruno, you found up, the first day at Google. How was it? It was like a dream for me.
सो फर्स्ट डे जा रही थी तो कॉल कर रही हूँ मम्मी पापा सबको कॉल पे रख के दिखा रही हूँ, देखो गूगल ऑफिस ये वो। तो फर्स्ट डे तो काफी ऐसे था कि कहाँ आ गई मैं, क्या कर रही हूँ। साइमल्टेनियसली बहुत प्रेशर था कि मुझे 3 महीने में प्रूव करना था खुद को, उनको बताना था। मुझे उन्होंने टारगेट बताया था फर्स्ट डे पे ही कि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। यू मस्ट हैव टू डिलीवर दिस एट दिस डेट। वाज़ लाइक ओके। प्लस बाजू में आई वाज़ वेरी हैप्पी टू बी हियर कि चलो बहुत अच्छा है, ऑफिस बहुत अच्छा है। मेन अट्रैक्शन गूगल का फूड है, फूड बहुत अच्छा है। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। वो एक अलग ही फीलिंग थी। फर्स्ट डे फीलिंग वाज़ मिक्स्ड बट नाइस। कैन यू डिस्क्राइब द कैंपस ऑफ गूगल जिन्होंने नहीं देखा है? मैं आई हैव बीन देयर वंस बट जैसे लाइक फॉर पीपल टू इमेजिन कि यार गूगल कैंपस कैसा होता है? आई थिंक इट्स लाइक अ सिटी, राइट? कैन यू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट दैट? यस, तो अभी गूगल कैंपस जो माउंटेन व्यू वाला जो सबसे बड़ा है, तो उसमें से साइकिल्स पड़ी रहती है। तुम डायरेक्टली कोई भी साइकिल उठाओ, उनकी गूगल वाली कलरफुल साइकिल रहती है। कोई भी साइकिल उठाओ, तुम किसी ऑफिस से किसी ऑफिस में चले जाओ। हर ऑफिस में खाने, हर पूरे कैंपस में ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब टाइप्स के रेस्टोरेंट्स होते हैं। तुम किधर भी जाके कुछ भी खा सकते हो। तुम्हें मेन्यू पहले से ही पता चल जाता है किधर क्या है तुम्हारे फ़ोन पे। प्लस घुसते ही काफ़ी मतलब जो कल्चर है उधर कि कॉन्फ्रेंस रूम बहुत रहते हैं। मतलब तुम्हें मीटिंग्स लेनी है तो अंदर ही लेनी है, मतलब बाहर किसी को डिस्टर्ब ना हो। बाहर एकदम साइलेंस रहता है क्योंकि सब बहुत काम कर रहे रहते हैं। एंड फिर वो पीयर पीयर प्रेशर तुम पे भी आता है कि तुम्हें भी चुप बैठ के काम करना है, तो वो एक चीज़ है। कैंपस तो बहुत बड़ा है एंड बिल्डिंग्स रहती है हर एक की, मैप्स की बिल्डिंग रहती है एक यूट्यूब की रहती है, तो हर एक ऐप्स की, हर एक टीम्स की ऐसे बिल्डिंग्स रहती है। तो सिटी जैसा है अंदर फुल। तुम साइकिल से घूमो बिंदास इधर-उधर, कुछ-कुछ एकदम सेफ रहता है। क्या नाइस। बात है! इट साउंड्स लाइक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, इट्स लाइक अ आइडियल वर्ल्ड फॉर अ टेक पर्सन। आपको चाहिए उतना खाना मिलेगा, चाहिए उतनी कॉफ़ी मिलेगी, आपको सिर्फ़ वहाँ पे यस, जाके काम करना है। एंड आई थिंक द वेदर इज़ ऑल्सो नाइस इन सैन फ्रांसिस्को। इट्स आई थिंक वेरी गुड। डिग्री सेल्सियस, राइट? हाउ वाज़ इट वर्किंग विद देम? लाइक आपने पहले इंडिया में एक्सपीरियंस लिया था कुछ हुँ। कंपनी काम करके एंड नाउ यू आर वर्किंग एट अ टॉप टियर कंपनी in the world, not just US, in the world. How was it working with them? पहली तो वो फॉर मी इट वाज़ लाइक कि सब लोग बहुत होशियार है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि एवरीवन अराउंड यू आर रियली स्मार्ट, ऑफ कोर्स दे आर स्मार्ट। एंड मैं इंटर्न थी और वो लोग फुल मतलब मेरे टीम में थे, मेरे कलीग्स थे। वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो कॉन्फिडेंट थे काफ़ी। तो मुझे ऐसा लगा अरे बहुत होशियार है ये लोग, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? तो वो एक फीलिंग थी, बट वो टाइम पे चली गई। 1 आध महीना, 1.5 महीने में वो ठीक हो गया था कि चलो ओके, आई एम आल्सो समथिंग, हो जाएगा करके। प्लस अगर वर्क कल्चर का बोलने जाए तो इंडिया का जो वर्क वर्क कल्चर है, वो काफ़ी अलग है, बिकॉज़ वी इंडियंस आर डिफरेंट पीपल। और यहाँ पे कल्चर अलग है बिकॉज़ यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी है। मतलब सिर्फ यूएस, अमेरिकन पीपल नहीं काम करते, बहुत सारे जगह से आने वाले लोग काम करते हैं। तो हर जगह का फ़ोर्स रहता है उस जगह में। सिर्फ तो वो डिफरेंस मैं बोल सकती हूँ कि इंडिया में हम सब एक जैसे सोचते हैं। तो हम जब एक जैसा सोचते हैं, तो वी कैन प्रेडिक्ट ईच अदर, वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर कि भाई तू ये सोच रहा था ना, तू ये मत कर करके। तो वो एक कैजुअल हो जाते हैं हम वर्क कल्चर में भी। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे काफ़ी फॉर्मल रहते हैं क्योंकि सबका कल्चर काफ़ी अलग है, सब कहीं अलग-अलग जगह से आए हैं। किसी को पता नहीं है कि इसको किस बात का बुरा लग जाए, तो दे फॉर्म अ बाउंड्री कि ऐसे नहीं, इतना ही करना है, इससे इतनी बात करके ज़्यादा नहीं, ओके आस्क रिस्पेक्टफुली कि क्या Hmm. करना है काम इतना ओके। तो वो डिफरेंस मैंने देखा एंड आई हैव वर्क्ड इन 3 डिफरेंट कंपनीज वेयर 3 डिफरेंट कल्चर्स।
तो अभी वो ही तुम सोचो कि इंडिया में ही 3 डिफरेंट कंपनीज में 3 डिफरेंट कल्चर्स थे, तो फिर अमेरिका का कल्चर तो बहुत ही अलग होगा इंडिया के 3 डिफरेंट मतलब कंपनीज से। करेक्ट, तो वैसा डिफरेंस है। नाइस, मैं बोलूँगी कि लोगों का डिफरेंस है, करेक्ट, करेक्ट। बस। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग आपने जो पॉइंट बोला कि लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं एंड देयर इज़ हुँ, अ प्रोफेशनलिज्म इन देयर कंडक्ट, बिहेवियर, बात करने के तरीके हुँ, में और काम करने के तरीके में भी। तो आप जैसे आप इंटर्न थी, राइट? एंड देयर वर पीपल वर्किंग फुल टाइम और आपके कोर्स के एंड में या आपके जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के एंड में आपको कुछ डिलीवर करना था। व्हाट वाज़ दैट इफ यू कैन टॉक अबाउट इट? तो मुझे एक यूट्यूब के डाउनलोड सेक्शंस में मैं काम कर रही थी, तो उसमें एक चीज़ डिलीवर करनी थी, जो एक लिस्ट थी। आई डोंट नो आई कैन टॉक अबाउट इट और नॉट, बट एक लिस्ट थी ये जो थोड़ा ऊपर स्मार्ट डाउनलोड्स। 10,000 फीट हाँ। व्यू बताइए। हुँ, तो क्योंकि वो शायद रिलीज़ हुआ नहीं इसलिए, तो स्मार्ट डाउनलोड्स के सेक्शन में मुझे कुछ एक लिस्ट बना के उनको देनी थी। तो मैं iOS एप्लीकेशन पे मोस्ट फ़ोकस्ड काम कर रही थी, एंड प्लस मैं एंड्रॉयड और iOS का दोनों का यूआई भी बना रही थी एक साथ। हुँ, तो ये मेरा काम था, बट एट द एंड जब मुझे प्रेज़ेंटेशन देना था, मेरी टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। उनको पता था, ये अब तक तो कॉन्फिडेंट है, बहुत काम कर रही है, बट ये प्रेज़ेंटेशन में डर रही है। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट पहले एक-एक ने ऐसे अलग-अलग से अपने हिसाब से मेरे को इतना कम्फर्ट में कि इट्स ओके, यू नो मैं जब ये यहाँ पे गया था, तो मैंने तो 3000 लोगों के सामने खराब कर दिया था। देखो, मैं ज़िंदा हूँ अभी भी। वाओ! वो मुझे ऐसे समझा रहे हैं सब लोग कि देखो मैं ज़िंदा हूँ, हम तो सिर्फ 10 लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, तू क्या ही गलती कर लेगी और हमको पता है तूने क्या काम किया। दैट इज़ ओके करके। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो टीम वाज़ रियली तो टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी इस मामले में। उनको समझा था मैं डर कोई भी डर जाएगा ना कि हुँ, इंटर्नशिप का हुँ, लास्ट डे दे माइट अ, डिसाइड कि अभी इसके साथ करना क्या है ऑन माय प्रेजेंटेशन, तो आई वाज़ हुँ, हुँ। स्कैर्ड। बट वो सब जब मुझे कम्फर्ट देते गए ना, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं कर लूँगी मैं, कर लूँगी। एंड इट वेंट वेल एक्चुअली, इट रियली वेंट वेल। माय होस्ट उन्होंने तो मुझे कहा था कि एक काम कर बीच में जोक मार ले। आई वाज़ लाइक नो। तो यहाँ के लोगों को ह्यूमर ऐसे बीच में होना, वो अच्छा लगता है और एंड दैट इज़ आल्सो गुड थिंग मुझे लगता है कि तुम कनेक्ट करते हो लोगों से, तो लोगों को लगता है अरे नहीं बाबा ये चिल है। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो जोक करवाया मतलब करवाया ही और सब हँसे भी एंड देन ही वाज़ फीलिंग प्राउड देखा मैंने बोला था लोग हँसेंगे इस पे। दैट्स रियली तो नाइस। इट वाज़ फन। वाओ! दैट साउंड्स सच अ यूनिक एक्सपीरियंस ना कि मतलब टॉप टियर लोगों के सामने जो अपने फील्ड में मतलब बहुत ही अच्छे हैं, उनके सामने आपको समथिंग सो इम्पैक्टफुल जो आपने सॉफ्टवेयर लैंड में आपने काम किया, आपने जो मेहनत की थी 9 महीने, उसके पहले जो इंजीनियरिंग में, ऑल दैट समराइजिंग इनटू अ वर्क जो आपको ग्लोबल लेवल वाले प्लेटफ़ॉर्म पे जो आपने जो भी फीचर पे काम किया होगा, वो सब लोग यूज़ करेंगे। देयर विल बी बिलियंस ऑफ पीपल हू यूज़ यूट्यूब वुड प्रोबब्ली यूज़ दैट फीचर। तो आपके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता होगा टू डू दैट, राइट? ऑफ कोर्स मतलब जब मैं कर रही थी ना, तो मैं मम्मी को कॉल कर रही हूँ, कम से कम 1 हफ्ते बाद वो बोर हो गई, अभी पता है हमको तू क्या कर रही है, रख फ़ोन। अरे नहीं, ये देख मैं क्या कर रही हूँ, इधर करने वाली हूँ मैं, इधर करना आई वाज़ सो प्राउड कि मेरा काम इतने लोगों तक पहुँचेगा। तो वो एक अलग मतलब मैं इंस्टा पे ज़्यादा हूँ, मैं नहीं रहती। मैं फेसबुक पे ज़्यादा नहीं रहती। मैं पहले से सिर्फ़ यूट्यूब पे ज़्यादा रहती थी। हुँ। और जब मुझे यूट्यूब का आया आई वाज़ लाइक ओह! इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा रहती थी। मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो भी थोड़ा बहुत टाइम पास है वो यूट्यूब पे रहता है। तो आई वाज़ ऑलरेडी अटैच्ड टू द ऐप और मैं इतनी खुश थी कि मैं इतना दिन से ये ऐप यूज़ कर रही हूँ एंड नाउ माय वर्क विल रीच टू सो मेनी पीपल दैट्स अ डिफरेंट ऐसे बोलते हैं ना ऐसे एकदम हाँ, हाँ, वाह, 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 ऐसा फील होता है। क्या बात है, क्या बात है! लाइक आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। इतने पॉजिटिव वाइब्स, इतने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड देन इट ऑल कल मतलब इट वाज़ एन एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द पास्ट दैट यू हैड टू गो थ्रू। तो आप कोई तो मतलब डिस्क्राइब योर हार्डशिप कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जो इतना प्लेजेंट नहीं होगा,
राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस शायद ना होता हो और आपके लिए भी नहीं होगा, लाइक मैनेजिंग फैमिली एक्सपेक्टेशंस बोलो, देयर विल बी डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट विल बी गोइंग ऑन बिहाइंड दिस प्रिटी फेस। तो आप वो भी थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए हमारे लिए कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक एंड व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? ऑफ कोर्स है, बट आई विल टॉक अबाउट इट। बट मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि कितने भी प्रॉब्लम्स हो, डोंट स्टॉप स्माइलिंग। क्या है, प्रॉब्लम्स तो सबके पास होते हैं, कर लेना सॉल्व। आज सो जाना नहीं हो रहा है तो कल करो, फिर हो तो जाएगा ही। क्यों लेके बैठना है, क्यों रोना है, नहीं रोने का कभी। क्योंकि काफी, जैसे मैंने बोला, काफी रिजेक्शंस है, तो फर्स्ट में मैं बहुत रोई, बट देन सेकंड आई डोंट, इट वाज लाइक इट्स ओके। आज नहीं पढ़ाई करूंगी, कल देख लूंगी क्या करना है। एंड देन उससे ही तो मैं आगे बढ़ी। मैं जब यहाँ पे आई तो फैमिली के लिए मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज आई वाज अ सेकंड चाइल्ड। मेरी फर्स्ट मतलब मेरी एल्डर सिस्टर वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो लोग अकेले थे वहां पे। तो वो उनका अलग इमोशनल ऐसे वो टूट चुके थे कि भाई अब क्या करेंगे, हमारा कोई नहीं, तो उनको संभालना उस टाइम पे। और मतलब तभी कोविड भी चल रहा था एंड बहुत कुछ हो गया था सबके फैमिलीज में कोविड में, तो करेक्ट। उस टाइम पे वो सब करके आना वाइल। तो जब मैं आई गो बैक व्हेन आई वाज इन इंडिया एंड आई वाज आई टेल यू कि जर्नी स्मूथ नहीं होती, बट यू कैन मेक इट स्मूथ। कि जब भी मैं यहाँ पे आने का प्रिपरेशन कर रही थी, कोविड का सेकेंड वेव आ गया था। सेकेंड वेव में माय फैमिली वाज इन्फेक्टेड, आई वाज इन्फेक्टेड, एंड देन इट वेंट टू रियली क्रिटिकल थिंग्स, कि बहुत क्रिटिकल हो गया था मैटर, वेयर आई वाज थिंकिंग कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। बट उसमें फैमिली सपोर्ट की थी, तू चालू रख। माय फादर वाज इन हॉस्पिटल, आई वाज लुकिंग फॉर लोन्स कि भाई लोन कहाँ पे मिल रहा है, कौन से बैंक में लोन मिल रहा है। तो दो दिमाग चल रहा था, यहाँ पे पापा है, यहाँ पे मैं लोन्स के लिए ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे वीजा का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे कैसा था, होता तो चुप होके बैठ जाती कि नहीं भाई नहीं जाना है करके, बट नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहेंगे, यू हैव टू मूव ऑन। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते गए एंड ऐसे मतलब मतलब और भी थे, मतलब फुल ईयर में यहाँ पे आई फिर भी थे फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत, तो वो थे ना पीछे, बट इट्स ओके, इट्स ओके। नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, सी एवरी करेक्ट। तो हो जाता है, दैट्स इट। I तो think the learning lesson, like you said, is at the end everything falls in place, right? And जैसे आपने बोला कि despite all these different situations that are sometimes in your control, sometimes not in your control, and they are, life is throwing them at you. At that point, थोड़ा overwhelming हो सकता है. And despite that, you kept moving on, you kept pushing through, हुँ, and you reached here where this is your हुँ, last semester, almost two months to graduate, and you are gonna be working full time at Google. आपका जो presentation था सबको अच्छा लगा and they offered you a full time opportunity at Google. येस। आपका story बहुत ही inspiring था. What inspired you? What were your role models while you were going through all these challenges? And what made you keep going? तो आई हैव सीन माय मॉम एंड डैड कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आते गए उनको बचपन, मतलब मेरे बचपन से, मतलब जब से मैं उनको देखते आ रही हूँ, बट वो कभी हंसना थोड़ी छोड़े। वो वो हमें हंसाते थे, हमें खाना खिलाते थे, हमें कपड़े दिलाते थे। अगर वो इतने खुश रह सकते हैं इतने प्रॉब्लम्स में, तो हम क्यों नहीं। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि भाई खुश रहते हैं ना, तो वो आसपास वाइब्स ऐसी बन जाती है। तो लर्निंग इज दैट कि प्रॉब्लम्स विल गो एंड कम, life is never be a straight line, it will be like this and let it be like this, उसमें ही फन है। पूरा टाइम खुशी, तो खुशी का कुछ मजा नहीं रहेगा, थोड़े टाइम की खुशी का ही मजा है, तो वो ले लो। सो दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी कि ठीक है, अभी जॉब तो कर ही रही हूँ, थोड़ा चलो ऊपर नीचे करके मास्टर्स करके आते हैं, कैसा है देख लेते हैं। Correct. तो That's really nice. That's really beautiful inspiration. Before we go, what would your हम्म, advice be for students who are going through a rough patch
finding jobs, क्योंकि right now the job market is not as good and they are trying to evaluate कि यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. What would your message be for them? I would suggest कि if you are from software engineering field, तो तुम अपना लीड कोड चालू रखो, वो मत छोड़ो. कुछ भी अगर यूएस में हो तो तुम्हारा एंट्री पॉइंट तुम्हारे लीड कोड से ही होने वाला है. तुम कोई और फील्ड से हो तो ट्राई टू बी एज अपडेटेड यू कैन. तुम्हारे फील्ड में छोड़ो मत, टच मत छोड़ो, क्योंकि आज ने तो कल मार्केट खुलने वाला है और जब खुलेगा फर्स्ट जॉब का इंटरव्यू क्रैक करना है तुम्हें, यही पॉइंट रखना है फॉर एवरीवन. तो तुम अभी जो टाइम मिल रहा है इसको गोल्डन पीरियड समझ के अब तक अगर पढ़ाई नहीं चालू की तो कर लो. यू आज से 2-3 महीने में जब मार्केट थोड़ा भी खुल गया, पहला जॉब तुम्हें मिलना चाहिए. इतना प्रिपरेशन चालू कर दो. दिया है ना टाइम भगवान ने, तो पढ़ लो. दिस इज व्हाट आई कैन से. देयर इज नेवर टू लेट. देयर इज नेवर टू लेट टू Correct. स्टार्ट एनीथिंग. That's such a positive attitude, and that's such an inspiring message, and especially for people who are finding jobs, I think your story will be a ray of light for them, and it will surely inspire a lot of people, including me. It has inspired me a lot. मैं तो अभी से लीड कोड करने का सोच रहा हूँ. But thank you so much, Shweta, for sharing this. Yes. And if you guys who are listening want to reach out to Shweta, you can reach out to her on LinkedIn. I'll put the link to her LinkedIn address below. Feel free to reach out. If you can't reach out to her directly, let us know. Reach out to TIP on the Instagram handle Indian Perspectives, or our email address, which will be in the description, and we will get you in touch with Shweta. In Sure. the end, Anytime. keep inspiring, Shweta. Keep smiling, and it was a pleasure chatting with you. And any Same art here. message you want to give? देयर इज नो टाइम टू लर्न एनीथिंग. अगर आज तुम्हारा मन कर रहा है और आज तुम 30+ हो या कुछ भी साल के हो, तुम्हें गिटार सीखना है तुम सीख लो. तुम्हें ड्राइंग करना है तुम कर लो. तुम्हें कथक करना है तुम कथक सीख लो. तुम्हें आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चालू करनी है तुम आज सीखो. देयर इज नो एज. एज इज जस्ट अ नंबर एंड वी हैव जस्ट कि भाई 30 में नहीं 22 में नौकरी, 25 में छोकरी एंड देन नो, दिस इज नथिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सब गया. छोड़ के आओ ये. There is no age to learn anything. Do it today. With that beautiful message, that's it from our side on TIP podcast. Next time, we'll bring you another special episode. Thank you so much, guys, for joining us, and take care. Bye.